Good afternoon. I'm Merlin Anklisaria, and I welcome you all to this session on a celebration of sports on the occasion of the 162nd birth anniversary of Sir Dorabji Tata. A celebration of sports event has been initiated with the objective of creating an event platform to enable achievers from across the world congregate under the Tata Steel banner and re-establish the company's contribution to thought leadership in the sporting arena. We have had Abhinav Bindra, Karnam Malleshwari, Zafar Iqbal, Rick Charlesworth, Pulela Gopichand, who have shared their experiences under this initiative in the past. This initiative also acknowledges the contribution of Sir Dorabji Tata in the field of sports. So, on his 162nd birth anniversary, let's celebrate Sir Dorabji Tata's contribution to sports. Allow me to show you a short video clip on Sir Dorabji Tata. Brick by brick, Dorabji Tata constructed his father's dream. Dorabji was born on 27th August 1859. Graduating from Cambridge and spending initial years as a journalist, Dorabji became the chairman of Empress Mills and married Meherbai. To set up the dream iron and steel factory, he rejected his life of comfort and embraced hardships. He set off on a voyage of discovery for iron ore with C.M. Weld and Shapurji Saklatwala in 1903. After much travail, Sakchi was chosen as the site for the steel plant. But Jamshedji had breathed his last on 19th May 1904 without seeing his dreams taking shape. And it was Dorabji who took up his father's reins. To him, we owe the concept of the raising of Indian capital for Indian enterprise. When he tried to raise the funds for the steel plant from London in 1906, he failed to convince the money market. Against every advice, he appealed to the people of India. The patriotic feelings were stirred, and the entire capital was realized in 3 weeks from 8,000 Indian investors. As chairman of the new Tata Steel, he planned the Steel City to become the symbol of the nascent industrial India by getting international sociologists like the Webbs and other town planners to create a new ideal, the city of Jamshedpur. In 1911, the first steel ingot was rolled out. Under his stewardship, advanced labor welfare measures were taken. Despite the early success, a crisis set in. In 1924, the company had to modernize or face a close down. The bankers refused to advance money for this. Unperturbed, Dorabji committed his entire personal fortune for the cause, including the famous Jubilee diamond. During this time, not one worker went without pay, thanks to his personal sacrifice. A keen sportsman, he initiated corporate sponsorship for sports and sportspersons. He financed the first Indian participation in the Olympic Games. Dorabji, the torchbearer of dreams, staked his all and endowed his very existence to the creation of wealth for others. It is my privilege to introduce our Olympian guests for this session. नीरज चोपड़ा बनना आसान नहीं है। वो सभी के हैं और हर कोई उनका एक हिस्सा बनना चाहता है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का भार आसानी से अपने कंधे पर उठाएं। आज ये उस तारीफ के हकदार हैं जो आज इन्हें मिल रही है। ये 23 वर्षीय जैवलिन थ्रोअर हरियाणा के कांड्रा गांव के रहने वाले हैं और इनका जन्म 24 दिसंबर 1997 को हुआ था। ये इंडियन आर्मी में जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं। नीरज सिर्फ उन 2 भारतीयों में से एक हैं जिन्हें
इंडिविजुअल गोल्ड ओलंपिक मेडल मिला है। दूसरे अभिनव बिंद्रा हैं। साथ ही किसी इंडिविजुअल इवेंट में सबसे कम उम्र के भारतीय स्वर्ण पदक विजेता और अपने ओलंपिक डेब्यू में गोल्ड जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। हमारी दूसरी मेहमान लवलीना बोरगोहेन हैं, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1997 को हुआ था। वह एक इंडियन एमेच्योर बॉक्सर हैं, जिन्होंने विमेन्स वेल्टरवेट इवेंट ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता और ओलंपिक में मेडल जीतने वाली एकमात्र तीसरी भारतीय मुक्केबाज बन गई हैं। लवलीना असम की पहली महिला एथलीट और ओलंपिक में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली दूसरी मुक्केबाज हैं। सन 2020 में वह अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली असम की छठी व्यक्ति बनी। I would now like to introduce our moderator for this session, Rajiv Seth. Rajiv Seth is an ex-first class cricketer from Bengal and Orissa. He also belongs to the first batch trainee and product of MRF Chennai, coached by legendary Dennis Lilly. He has played as a professional in English and Scottish Premier Division leagues in 1993 to 1999. He has served in various capacities with Tata Steel before his current position of the project director, Orissa Naval Tata Hockey High Performance Center. Over to you, Rajiv, to take this session forward. Thank you, Berlin. What an introduction and what a great foundation. मैं हिंदी में बात करूंगा पूरे सेशन में, लेकिन उससे पहले we are saluting legends, starting from Sir Dorab Tata, जिन्होंने not just industrialization for the nation में contribution immense था उनका, बल्कि जो उन्होंने sports culture develop किया, जिसके लिए आज हम we feel very proud of it. साथ साथ इस मौके पे ये हमारा सौभाग्य है, जैसे आपने बताया, कि हमारे पास हमारे दो टॉप एथलीट्स जो कि रीसेंट सक्सेस से भी और उसके अलावा अच्छा करते आ रहे हैं, श्री नीरज चोपड़ा, gold medalist from the recent Olympics in track and field event, creating a history, and Lovelina Bourgoin, latest sensation in women's boxing, winning bronze in Tokyo 2020. तो चलिए ये सिलसिला स्टार्ट करते हैं नीरज भाई आपके साथ और लवलीना जी के साथ, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ऐसे साथी जुड़े हैं जो कि आपके बारे में काफी जानते हैं, लेकिन जितना जाने आपके बारे में उतना कम है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नीरज भाई, 100 साल से भारत को इंतजार था जिस पल का, जो कि 7 अगस्त में टोक्यो में आपने कर दिखाया। एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल, 130 करोड़ भारतीयों के प्यार और स्नेह जो आप पर पिछले 15-20 दिनों से बरस रहा है, उसको संभालना कितना मुश्किल हो रहा है, अभी ये यकीन हो रहा है या सपना जैसा ही लग रहा है? आप म्यूट हैं शायद नीरज भाई। जी थैंक यू। अभी तो क्योंकि अभी अपने देश में आ गए हैं और सभी का प्यार मिल रहा है, और अभी तो बिल्कुल सपना तो था, लेकिन हाँ अभी लग रहा है कि वो सपना सच हो गया है। पर अगर मैं बताऊं कि जो पीछे से हमारा इतिहास इतना अच्छा रहा एथलेटिक्स का, हमारे मिल्खा सिंह जी और पीटी उषा जी और भी काफी अच्छे अच्छे महान एथलीट रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़े चूक गए थे, मेडल से फोर्थ आ गए थे। पर बिल्कुल अभी वो जो इतना वेट था वो पूरे देश का अभी खत्म हुआ है, और मैं बहुत ही एक सभी देशवासियों को धन्यवाद करता हूँ कि उनकी इतनी दुआएं मेरे साथ थी, और जो मैंने मेडल जीता है तो सभी की दुआओं का और सभी के प्यार का बहुत इसमें योगदान रहा है। तो बिल्कुल सर, जो अपना वेट था वो अपने देश का खत्म हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि अभी ये वेट अभी किसी के मन में नहीं आया कि हमारे पास नहीं है। अभी वो चीज, अभी हमारी संख्या और बढ़ सकती है मेडल्स की, तो वो चाहे एथलेटिक्स हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो। तो अगले ओलंपिक्स में या किसी भी गेम्स में मैं आशा करता हूँ कि और ज्यादा हमारे मेडल आएंगे। जरूर, और हम फूले नहीं समा रहे नीरज भाई, आपकी उपलब्धियों से, आपकी अचीवमेंट से पूरा देश आप पे गर्व करता है। एक आपने बहुत ही, कहते ना, वो जेन्युइन और ओरिजिनल वे में अपने पिताजी से बात की मेडल जीतने के बाद,
कि जी लठ गाड़ दिया, उसके जी। बारे में कुछ बताइए। देखो जी, हरियाणवी लैंग्वेज है और मैं बात कर रहा था अपने पापा से, तो वो थोड़ा सा वो कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मीडिया के साथ वो उनसे मैं कनेक्ट हुआ था, तो वो कोशिश कर रहे थे कि मैं थोड़ा हिंदी में बोलूँ, तो इसलिए मैंने कहा था कि आप आराम से बोलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि वो अनकंफर्टेबल सा फील कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि आप बिल्कुल अपने हरियाणवी लैंग्वेज में उसमें बोलिए, तो जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं और जिसको आप अच्छे से बोल सकते हैं। तो फिर वो लठ गाड़ने वाली बात हरियाणा की एक नॉर्मल बात है कि आप सब कुछ अलग से करते हैं तो बोलते हैं कि लठ गाड़ दिया। तो वो अरे चीज वो एक अलग चीज है जी। हाँ जी। बहुत बढ़िया। और यही डायलेक्ट ये बहुत भाया लोगों को और बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ये हमारी ओरिजिनलिटी बताता है। जी एक बिल्कुल। कहते हैं ना, अंदर का जो भाव है वो बाहर जी आता है। अ, हरियाणा जैसे यू नो जहाँ अक्सर लोग कुश्ती, हॉकी, ये सब चीजें खेलते हैं, ये सब स्पोर्ट्स में ज्यादा माना जाता है, वहां से नीरज चोपड़ा के जैवलिन का सफर कैसे शुरू हुआ? कब आपको लगा कि नहीं, अभी बस जैवलिन ही थ्रो ही करते करते रहना है? बिल्कुल जी, हरियाणा में अगर आप देखोगे तो कुश्ती, कबड्डी, बॉक्सिंग जैसे गेम ज्यादा है जो फिजिकल। अभी हॉकी भी काफी अच्छा हो रहा है। अपनी लड़कियों की टीम ने बहुत अच्छा किया। दो लड़के भी हरियाणा के हॉकी के टीम में थे, तो काफी अच्छा अभी बाकी स्पोर्ट्स में था। अभी शूटिंग में भी अच्छे आ रहे हैं। और जब मैंने जेवलिन शुरू किया तो मैं ऐसे नॉर्मल फिटनेस के लिए ग्राउंड पे गया था, लेकिन मुझे जेवलिन काफी पसंद आया, क्योंकि बाकी स्पोर्ट्स भी वहां पे थे जब वो लेकिन जब थ्रो कर रहे थे मेरे सीनियर, तो मैंने देखा और मुझे काफी पसंद आया। तो जब भी मैंने डिसाइड कर लिया हाँ मुझे ये स्पोर्ट्स करना है। और मैं मानता हूँ कि एक ऐसी कोई बात नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते हैं, वो बस हमारे हम सोचने का और हमारे मन में जो हम ठान लेते हैं उसका उसका असर पड़ता है। कि अगर हम मान लो हम सोचे कि यार नहीं ये हमसे नहीं हो पाएगा, तो पहले ही हम कहीं ना कहीं उस चीज में अपने आप को पीछे कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा फील होता था कि यार स्टार्टिंग में हमें भी ऐसा लगता था कि यार पता नहीं ओलंपिक जैसे खेल में हम खेल भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन धीरे धीरे पर सच्चे मन से मेहनत करते गए, सब कुछ मिला। धीरे धीरे जूनियर कॉम्पिटिशन्स खेल लिए, फिर उसके बाद इंटरनेशनल में गए, कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स खेला, वहां पे गोल्ड जीता। और फिर बिल्कुल ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। तो अगर हम मेहनत करते हैं तो सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। तो सच्चे मन से मेहनत की और आज जाके ये मुकाम हासिल हुआ है। और ये मुकाम हासिल करने में कोई कुछ साल नहीं लगे। मैंने 2011 में शुरू किया था, तो 10 साल के बाद मैं ओलंपिक्स खेला हूँ और मुझे गोल्ड मिला है। तो ये पूरी लगातार 10 साल की मेहनत थी जो ये अभी आगे आई है। बहुत खूब। और जैसे कहते हैं ना, देर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। आपको वो जी। ही असली रिजल्ट्स देता है। नीरज भाई, क्या आपको याद है फर्स्ट टाइम जब अपने आपने जेवलिन थ्रो किया था, कितना डिस्टेंस हुआ होगा? और वहां से ये मैजिक नंबर 87.58 का सफर कैसे देखते हैं? पहली बार जब ट्राई किया था तो मुश्किल से 35-40 मीटर तक जाता था। लेकिन कुछ दिन ट्रेनिंग करने के बाद थोड़ा इम्प्रूव होने लगा। क्योंकि हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो शुरू में हम एकदम बहुत अच्छे लेवल का नहीं कर सकते। फिर उसमें ट्रेनिंग शुरू की, धीरे धीरे फिटनेस बढ़ी और धीरे धीरे टेक्निक भी अच्छी होती गई। तो बिल्कुल उसमें टाइम लगा। लेकिन ये है कि साथ के साथ जो मेहनत कर रहे थे वो चीज मैंने मेरे सीनियर्स ने काफी अच्छे से मुझे सिखाई। जो सबसे जरूरी होती है, एक गाइडेंस, और जो हम शुरू करते हैं कोई चीज को, वो एक हेल्प जो करते हैं, तो वो सबसे जरूरी है। तो वो मेरा कहीं ना कहीं मेरा ग्रुप काफी अच्छा रहा कि मुझे अच्छे से हेल्प मिली, अच्छे से उन्होंने मुझे सिखाया। तो उसका इस चीज में काफी बड़ा योगदान है। बहुत जरूर, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट योर पीयर्स, जिनके साथ आप ट्रेनिंग करते हैं, जिनकी जी गाइडेंस में रहते हैं, वो ही जी जी। आपको आपके साथी बनते हैं, रियल टाइम बिल- साथी। चलिए बिल्कुल। थोड़ा गियर चेंज करते हैं और हमारी वंडर गर्ल को भी सामने लेकर आते हैं। लवलीना, लेट्स सी योर फेस फर्स्ट। आपका वीडियो ऑन कीजिए। लवलीना, इफ यू कैन हियर मी, यस यस हाँ। आपका वीडियो ऑन कीजिए। ओके, हाँ, गुड गुड, नाउ आई कैन सी यू। So as I call you our wonder girl, so Lovelina, a medal in your Olympic debut, पहले ओलंपिक में
मेडल मिलना कोई छोटी बात नहीं है। इट्स बिन ऑलमोस्ट अ मंथ नाउ। अभी ये क्या फीलिंग थोड़ा बहुत सिंक इन हुई है कि अभी भी चल रही है? नहीं, मेडल का मेरा मेरा सपना मतलब गोल्ड का था, तो लेकिन मैं गोल्ड नहीं ला पाई। तो हाँ, मेडल लाई मैं इंडिया के लिए। ये तो इसके लिए तो मैं खुश हूँ, लेकिन मतलब जितना तक होना था उतना तक नहीं कर पाई। तो कहीं न कहीं ये भी मन में है कि मतलब मुझे खत्म नहीं हुआ है और करना है मुझे। तो यही बात थोड़ा-सा ये हो रहा है। और अभी तो एक मेडल आया, वैसे तो हमारे असम का पहला मेडल है, तो फिर लोग बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, लोग बहुत मिलना चाहते हैं। लेकिन मैं अंदर से इतना खुश नहीं हूँ कि मैं गोल्ड नहीं ला पाई। बिल्कुल, जितना थोड़ा बहुत मैं आपके बारे में जानता हूँ लवलीना, मुझे पता है यू सेट वेरी हाई स्टैंडर्ड्स फॉर योरसेल्फ। आपका जो बेंचमार्क अपने लिए सेट किया है वो वो मतलब इट्स प्रशंसा के हकदार हैं आप उसके लिए। तो लवलीना, अगर हम आपके बचपन की बात करें, बचपन आपका कैसा बीता? मेरा बचपन थोड़ा-सा अलग है, क्योंकि वैसे तो हमारा मतलब घर का सिचुएशन इतना अच्छा नहीं था। तो फिर बचपन का ऐसा कुछ याद कुछ है ही नहीं कि मतलब फिर से मैं याद करना चाहती हूँ। क्योंकि बचपन में ऐसा होते थे कि हम लोग सोचना पड़ता था कि हम सुबह अगर हम लोग खाना खा रहे हैं, तो हम रात को खाना खाने के लिए मिलेगा कि नहीं। तो इसीलिए बचपन का कुछ ऐसा याद मतलब बहुत ख़ास याद नहीं है, और मेरा इतना फ्रेंड भी नहीं बनते थे। इसीलिए बहुत ज़्यादा ख़ास याद नहीं है। और स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रही शुरू से ही, एकदम बचपन से ही, कि एक दौर आया जब आपने वो मोड़ लिया? नहीं, बचपन से स्पोर्ट्स का कुछ शौक नहीं था मेरा। मैं जब स्कूल में क्लास 9th में थी, तब मैं मार्शल आर्ट में जॉइन किया था, और उसके बाद ही बॉक्सिंग में आना हुआ मुझे। ओके, ओके। तो जब बचपन की बात करें तो नीरज भाई, आपका बचपन के बारे में भी थोड़ा सा पूछा जाए। क्या ये सच है बचपन में आपके आस पड़ोस के बच्चे आपको आपके मोटापे के लिए चिढ़ाते थे, और इसलिए आपके पिताजी ने आपको जिम में भर्ती करवाया था, जहां से आपको जेवलिन के बारे में पता चला? फिटनेस के बारे में आपका क्या महत्व है? आप म्यूट हैं नीरज भाई, अनम्यूट सॉरी। कीजिए। हाँ जी। नो वरीज, नो वरीज। हाँ, वो थोड़ा बहुत अगर हम सभी जगह कोई ना कोई जैसे थोड़ा मोटापा होता है तो कोई बोल देता है ऐसे मजाक में कि हाँ भाई मोटे कैसा है, तो वो चीज कहीं ना कहीं वो लग जाती है कई बार मन में कि हाँ कुछ करना है। तो बिल्कुल उस टाइम पे स्टार्टिंग में मैं थोड़ा बहुत जिम में गया था, लेकिन फिर मेरे छोटे चाचा हैं, उन्होंने फिर पूरी फैमिली ने डिसाइड किया कि स्टेडियम ज्वाइन करवाना है। तो स्टेडियम में मैं फिटनेस के लिए जब जब गया था, तो बिल्कुल गांव में तो ऐसा माहौल नहीं था स्पोर्ट्स का, थोड़ा मुश्किल था गांव में स्पोर्ट्स करना, क्योंकि कुछ भी छोटा मोटा ऐसे गली में क्रिकेट खेलना, या एक वॉलीबॉल का ग्राउंड था वॉलीबॉल खेल लेते थे, या थोड़ा बहुत सड़क पे हम रनिंग कर लेते थे। लेकिन अगर स्टेडियम की बात करें तो हमारे गांव में स्टेडियम नहीं था। तो तब मैं अपने गांव से 15-16 किलोमीटर दूर हमारा पानीपत में स्टेडियम था, तो मैं वहां पे डेली मैंने वहां पे जाना शुरू किया। और उसके बाद स्टेडियम में जाके जो माहौल था वो एक स्पोर्ट्स का, वो एक अलग ही था। और कुछ दिन मुझे ऐसा लगा कि यार क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग करते थे तो थकावट भी होती है और शरीर दुखता भी था। तो कुछ दिन ऐसा लगा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है और पता नहीं कैसे होगा, तो मेरा मन करता था कि स्टेडियम में ना जाऊं। लेकिन थोड़े दिन में वो खुद वो चीज अच्छी लगने लगी। तो फिर उसके बाद जो जुनून आया मन में वो एक अलग ही था कि मुझे स्पोर्ट्स करना है और मुझे इसके लिए मेहनत करनी है। तो वो बिल्कुल वो सब कुछ पूरा माइंड चेंज हो गया। बहुत खूब। और ये लगन होती है और एक एक दृढ़ संकल्प होता है जो कि आपको आगे लेकर जाता है। तो बहुत ही इंस्पिरेशनल बात वो सब यंगस्टर्स के लिए जो इसको सुन रहे हैं, वो जो मेहनत करने वाले हमारे जो साथी जो कि अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो कहीं पे कोई चीज का कहते हैं ना, रुकावट नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं कोई कोई जी। बाधाएं नहीं रखनी चाहिए। जैसा आपको मौका मिले उसका भरपूर आपको फायदा उठाना चाहिए।
लवलीना, आपके बारे में सुना गया कि आप मुay थाई सीख रही थी, वहां से बॉक्सिंग में आपने ट्रांजिशन कैसे हुआ? वहां से एकदम मुay थाई से, विच इज अगेन लाइक अ किक बॉक्सिंग और समथिंग? हाँ। ओके। मुआ थाई में 2 साल में मुआ थाई सीखी और उसके बाद बॉक्सिंग में आई। बॉक्सिंग तो मुझे पहले से ही पसंद था, लेकिन बॉक्सिंग का कुछ था नहीं हमारे गांव में, यहाँ पे कोई सेंटर्स वगैरह भी नहीं थे। तो फिर और मुआ थाई जो गेम होता है वो ओलंपिक में नहीं थे। तो बचपन से ही एक ओलंपिक का था मन में कि ओलंपिक एक स्पोर्ट्स ऐसा, मतलब ओलंपिक स्पोर्ट्स से खेल सकते हैं। और उसे मतलब 2012 में जब ओलंपिक चल रहा था, जब मेरी कॉम दीदी ने भी मेडल दिया था, तब मतलब एक मन में हुआ था कि हम भी अगर ओलंपिक खेले तो कितनी अच्छी बात होंगे। तो बॉक्सिंग एक गेम थे कि उसमें ओलंपिक खेल सकते थे। और तभी मुझे ऐसे ही चांस भी मिल गया था कि बॉक्सिंग में आने के लिए। तो मेन तो ओलंपिक को सोच के ही बॉक्सिंग में आई। बहुत खूब। और मेरी कॉम से अच्छा कौन सा रोल मॉडल हो सकता है? तो इसमें लवलीना, इसके अलावा आपने मणिपुरी मार्शल आर्ट्स में भी, थान थाई में भी मेडल हासिल किया है नेशनल लेवल पे। क्या फ्यूचर में और कोई कॉम्बैट स्पोर्ट्स में मेडल लेने का इरादा है क्या? वैसे अभी तक तो सोचा नहीं है। हाँ, मैं ठंगटा में भी मतलब जब मैं मुआ थाई खेलती थी तब हम लोगों का बहुत सारे जो भी गेम होते थे बस खेलते रहते थे हम। तो उसके बीच थंगटा में भी कभी कभी ट्रेनिंग करते थे हम, और नेशनल खेले थे, उसमें मेरा सिल्वर मेडल भी आया था। लेकिन इतना ज्यादा खेला नहीं गया क्योंकि मैं बॉक्सिंग में आ गई। तो बॉक्सिंग में आने के बाद सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स को ध्यान दिया जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑन अ लाइटर नोट, लड़के तो आपके आसपास नहीं आते होंगे? जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नीरज भाई, अगर हम टोक्यो के फाइनल के दिन की बात करें, तो क्या चल रहा था आपके दिमाग में उस दिन? सुबह से क्या रूटीन था आपका? बहुत से लोग जानना चाहेंगे, बिकॉज ये प्रिपरेशन इज अ वेरी बिग फैक्टर इन एनीथिंग विच वी डू इन आवर यूजुअल लाइफ में, जो भी हम करते हैं। तो आपसे सुनना चाहेंगे इस बारे में। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो मैं बोलूंगा कि प्रिपरेशन होती है, जो हमारी मेहनत थी वही जो है आगे हमको लेके आती है, वही उसी की वजह से मेडल आता है। लेकिन अगर मैं ओलंपिक के फाइनल वाले दिन की बात बताऊं तो बिल्कुल हमारे ना चाहते हुए भी दिमाग में बहुत कुछ चलता है, क्योंकि एक हर एक एथलीट का सपना है कि ओलंपिक खेलने जाएं और मेडल जीत के आए। तो मेरा भी एक वही सपना था और मैं वहां पे गया था अपने देश की तरफ से। तो एक ये भी एक मेरे लिए बहुत ही एक अच्छी बात थी। लेकिन जो फाइनल का दिन था उस दिन अ, कोशिश की थी जल्दी सोने की, ताकि अच्छे से आराम हो, अगले दिन हम अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। लेकिन फिर भी दिमाग में काफी कुछ चल रहा था, जिससे हमको जो नॉर्मली नींद आती है वैसे एकदम नींद नहीं आई। तो कुछ घंटे ऐसे लेटा रहा, फिर उसके बाद नींद आई। सुबह आंख भी जल्दी खुल गई थी, 5 साढ़े 5 बजे के करीब उठ गए थे अपने आप ही। तो वो दिमाग और बॉडी वो अपने आप उस चीज में ऑटोमेटिक घुस जाती है हमारे ना चाहते हुए भी। और पूरा दिन वही फोकस पूरा अपने इवेंट पे था कि शाम को फाइनल है, कैसे करना है, कैसे अपना माइंड सेट रखना है। और बस दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि ये आज वो दिन है कि मेरे आज तक के स्पोर्ट्स कैरियर का या मेरी पूरी लाइफ का सबसे बड़ा वो दिन है, कि जो एक खिलाड़ी होने के नाते जो मेरा सपना है आज वो पूरा हो सकता है, और मैं उसमें कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मेरे दिमाग में यही बात थी कि आज ऐसी परफॉर्मेंस देनी है कि बाद में पछतावा ना हो कि यार मेरे पास वो दिन था और मैंने वो छोड़ दिया। तो वो कमी नहीं रहनी चाहिए, यही मेरे दिमाग में था। और उसके लिए मैं पूरा प्रिपेयर था कि मुझे अपना 100% लगा देना है। उसके लिए मेरा दिमाग पूरा उसी पे काम कर रहा था। और ये दर्शाया नीरज भाई, जब आपने वो सेकंड थ्रो किया जी। तो एकदम से अपने मुड़कर भी नहीं देखा, सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि आपका पहला थ्रो ही मतलब एकदम बेंचमार्क था, एकदम आपका पर्सनल बेस्ट से अच्छा था। और क्या आपको ये अंदेशा था कि ये थ्रो मेडल निश्चित ही कर लाएगा? हाँ, मेडल का तो उस थ्रो से निश्चित था, लेकिन गोल्ड का ये था कि क्योंकि काफी कॉम्पिटिटर काफी टफ थे, काफी अच्छे थे। तो मन में यही था कि
गोल्ड का कुछ भी हो सकता है, कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ मेडल का तो था। पर मेरे दिमाग में फिर भी ये चल रहा था कि मुझे और बेस्ट करनी है थ्रो। और जो सेलिब्रेशन करने का है, वो हाथ उठाने का, वो ऐसा है कि सर हम मैं 10 साल से 10.5 साल से थ्रो कर रहा हूँ, तो मुझे पता लग जाता है कि हाँ ये इतना एफर्ट लगा और ये थ्रो इतना अच्छा गया होगा। तो उसका पता लग जाता है कि हाँ जो मेरा एफर्ट है वो काफी अच्छा लगा है और ये थ्रो अच्छा मिलेगा। तो उसकी वजह से वो पता लग जाता है। और बाकी सर बिल्कुल काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा टोक्यो का। और काफी खुशी है कि देश के लिए कुछ कर पाया और राष्ट्रगान अपना बजवा पाया, क्योंकि अ, बहुत ही खुशी थी कि कितना मतलब अपना अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। और मैं भी मोटिवेट हो रहा था कि अपने स्टार्टिंग में थोड़ा सा गड़बड़ रही, लेकिन बाद में सभी अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे, मेडल लेके आ रहे थे। तो वो काफी एक अच्छा मोटिवेशन रहा कि अपने सभी एथलीट्स को देख के मिल के काफी अच्छा लग रहा था। और मेरे दिमाग में भी एक पॉजिटिविटी थी कि मैं भी कुछ करके जाऊंगा यहाँ से। एंड मैं समझता हूँ कि आपकी जो ऊर्जा उस दिन दिखी, जो आप में जो एक एनर्जी लेवल दिखा उस दिन में, और कूल काम कंपोज, जैसे आपने आपको बड़ी अपनी कहते हैं ना कि परिस्थितियों के साथ रखा और अपने आप को एक संभाल के आपकी एक पीक परफॉर्मेंस देने के लिए, वो एक मिसाल है। और मैं जी ये भी समझता हूँ कि आपका इवेंट टुवर्ड्स द सेकेंड फेज ऑफ ओलंपिक में होना, दैट इटसेल्फ वाज अ चैलेंज, बिकॉज आपको जी बिल्कुल। काफी चीजें पता चल जाती हैं कि पहले फेज में कितने मेडल्स आए, कितनी हमारी डिसअपॉइंटमेंट्स हुई, तो कहीं ना कहीं वो बिल्डअप करता है प्रेशर एक बिल्कुल सही। खिलाड़ी के दिमाग में। तो नीरज, ये जोहान्स वेटर का जो फेवरेट, ही वाज द फेवरेट बिफोर वी गॉट इनटू ओलंपिक्स गोल्ड मेडल के लिए, उन्होंने एक पहले कहा था कि नीरज इज गुड बट टफ फॉर हिम टू बीट मी एट टोक्यो। डिड दिस चार्ज यू? आपको थोड़ा सा उसने किक दिया क्या, इवन मोर टू क्वालिफिकेशन एंड फाइनल डे? नहीं सर, मैंने उस बात के बारे में ज्यादा सोचा नहीं और मैंने रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि क्या पता उसके पीछे बोलने का उसका उद्देश्य क्या था। क्योंकि मैं मानता हूँ कि वो एथलीट बहुत ही अच्छा है और वो बिल्कुल वर्ल्ड रिकॉर्ड के काफी क्लोज है। तो वो एक उसका कॉन्फिडेंस था कि उसने कि वो बोल रहा था कि मैं 90 प्लस करूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सभी कॉम्पिटिशन्स में 90 प्लस कर रहा था और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के काफी नजदीक था। लेकिन स्पोर्ट्स ऐसी चीज है कि आप हमेशा हमेशा से एक जगह पे बन के नहीं रह सकते। कई बार डाउन भी आ जाते हैं, कई बार बहुत अच्छा परफॉर्म होता है। तो हार जीत ये स्पोर्ट्स का हिस्सा है। तो बिल्कुल मैं यही सोच रहा था कि मुझे बस अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करना है और बाकी कॉम्पिटिटर तो टफ थे ही। और मैं यही सोचता हूँ कि बस अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, क्योंकि हमारा स्पोर्ट्स ऐसा है कि हमारी खुद से ही लड़ाई है। अभी लवलीना है, लवलीना सामने वाले को मुक्के मारेगी तो लवलीना जीतेगी, लेकिन हमको क्या है कि हमें खुद का ही थ्रो बेस्ट करना है, तभी हम जीतेंगे। तो वो हम खेलते सभी इकट्ठे हैं, मान लो 12 लोग फाइनल में होते हैं और एक एक की करके थ्रो आती है और हम एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कंपटीशन हमारी खुद की बॉडी के साथ होता है कि हम उस दिन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं अपना 100%। तो कहीं ना कहीं वो चीज वो उस दिन मान सकते हैं कि वेटर का दिन नहीं था, या फिर उस दिन आ, मेरे साथ इतनी दुआएं थी, तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि स्पोर्ट्स में वही मैंने बताया कि हार जीत, बहुत बड़े बड़े चैंपियंस हमारे एथलीट रहे हैं, लेकिन वो हमेशा जीत नहीं पाए। कुछ दिन ऐसा होता है कि उनके उनके लिए वो उस दिन उनका उनका बॉडी लैंग्वेज उस टाइप का नहीं होता है, तो परफॉर्मेंस में फर्क आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके साथ हुआ, वरना सभी उनको गोल्ड मेडल का पहले से हकदार मान रहे थे। बहुत खूब बातें नीरज भाई, और यही दर्शाता है कि आप कितने लेवल हेडेड स्पोर्ट्स पर्सन हैं। जो आप अपने आप को तो कभी आप तो बहुत मॉडेस्ट हैं, अपने बारे में ज्यादा बात भी नहीं करते हैं, लेकिन आप जब दूसरे खिलाड़ी को कभी कम नहीं समझते हैं, ये बहुत जी बड़ी खूबी है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक बिफोर यू। आई गो ऑन टू लवलीना, आई जस्ट वांटेड फॉर आवर व्यूअर्स, हमारे श्रोताओं के लिए, people connected over WebEx can drop their messages, and even MS Stream maybe can send their questions to communication@tatasteel.com. तो हम क्वेश्चन आंसर सेशंस में आपके आपके क्वेश्चंस उठा सकते हैं, तो काइंडली वर्क टुवर्ड्स इट। तो लवलीना, चलिए आपके साथ जुड़ते हैं। ऑन पेपर जैसे वैसे नीरज भाई बोल रहे थे कि आप मुक्का लगाती हैं और एकदम आपके पास ओपोनेंट है, तो ऑन पेपर आपका ड्रॉ बहुत टफ था, बट आपके गेम से लग रहा था कि आपने हर ओपोनेंट के गेम प्लान को देखकर काफी अच्छी प्रिपरेशन की थी।
especially in that quarterfinals match against Chen Yan Chen. What was आपका प्लान क्या था? प्लान मेन प्लान तो अभी नीरज जी ने बोला ही है कि क्योंकि हमारा तो ऐसा होता है कि हर एक बाउट को मतलब ऐसा होता है कि पूरा जोर लगा देना होता है, ऐसा फाइनल जैसा होता है। तो उस दिन बस मेरा दिमाग में इतना ही था कि आज मेरा दिन है, बस मुझे खेलना है। इतने दिनों से तो इसी दिन का मतलब वेट कर रहे थे, तो आज का दिन भी अगर हम सोचते ही रह जाएंगे तो क्या होगा, बस मैं इतना ही सोचा था। और खुद के ऊपर ये विश्वास भी था कि इतने सालों से ट्रेनिंग करके आए हैं तो फिर आज तो खेलना ही है, बस इतना ही था। और दूसरा प्लान, हाँ, एक ओपोनेंट के ऊपर स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है, क्योंकि ओलंपिक में जब आते हैं तो वो अपना बेस्ट और 100% ही देते हैं। तो उसको कैसे मारना है, उसका गेम को वीडियो देख के और उसके ऊपर स्ट्रेटेजी बना के। तो और एक तो वो था कि मैं उसके साथ 4 बार हार चुकी थी, तो उसका गेम मुझे पता ही था कि मुझे उसके साथ कैसे खेलना है। तो खुद के ऊपर विश्वास थोड़ा-सा था और कि आज भी मुझे नहीं हारना है और जीतना ही है सोच के ही खेलना था बस। बहुत अच्छा। इनफैक्ट जैसे आपकी प्रिपरेशन लग रही थी कि आप थोड़ा सा वेटिंग भी देख रहे थे कि कहाँ मुझे वो मौका मिले और वो मैं स्ट्राइक कर सकूं। तो ऑब्वियसली जैसे आपने बताया कि एक स्ट्रैटेजी है, काउंटर प्रोडक्टिव अटैक जब होता है तो तब रिजल्ट्स आते हैं। तो यही एक खूबी होती है एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की। और वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप वो बाउट एकदम चैंपियन की तरह खेली और हमारे देश के लिए गौरव की बात बनी। लवलीना, आप टोक्यो ओलंपिक्स में एज 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियंस ब्रॉन्ज मेडलिस्ट गई थी, बट वर नॉट सीन एज वन ऑफ द फेवरेट्स टू रिटर्न विद मेडल फ्रॉम टोक्यो। ये अक्सर होता है, बट दैट्स द वे इट इज। डिड दिस हेल्प यू टू परफॉर्म? मतलब आपको इसने और ज्यादा मतलब उत्साह कि और प्रेशर एज बैराज ऑफ एक्सपेक्टेशंस वाज देयर कि हमें और अच्छा करना है? हाँ, ऐसे मतलब जब मेरी थी और से अमित पंघल लोग भी थे, तो उन लोगों का पहले ही वो लोग लॉस हो गए, तो फिर थोड़ा सा तो था कि अब क्या होगा, क्योंकि उनके ऊपर ही सबसे ज्यादा होप थे। और लेकिन मैं मतलब इतना ये सब के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे अपना बेस्ट देना था। क्योंकि जब ओलंपिक होता है हर कोई बेस्ट बन के आता है, ये तो बोला ही है, तो मुझे अपना 100% देना था, तो मैं इतना नहीं सोचा था ये सब के बारे में। Very good, and that's all about concentration and sticking to your targets. आपके अपने जो टारगेट सेट किए हुए हैं। तो लवलीना, फॉलोइंग अप विद दिस, अब से जहां जहां भी compete करेंगी, expectations will be sky high। जैसे आपको भी पता है कि अब एक बार आप एक दायरा अपने लिए बना लें, एक बेंचमार्क अपने लिए बना लें, तो उसके बाद लोगों की expectations बढ़ती हैं। हाउ डू यू प्लान टू टैकल दिस एडिशनल प्रेशर? ये आपके लिए भी और नीरज के लिए भी है, बट कैसा देखती हैं आप इसको? मैं इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर लेते हैं तो फिर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है। तो बस जितना किया है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मैं जितना किया है उतना ही मैं मतलब कंपटीशन में कर पाऊँगी। तो मैं बस अपने ट्रेनिंग पे विश्वास करती हूँ, क्योंकि लोगों लोगों के बारे में सोचूंगी कि एक्सपेक्टेशन ज्यादा है तो मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मैं फ्री माइंड होके खेलने की कोशिश करूंगी। आगे भी बस मैं ऐसे ही जैसे अभी खेलती हूँ वैसे ही खेलने की कोशिश करूंगी। बहुत जरूरी है, और ये बिकॉज कोई भी अच्छे स्पोर्ट्समैन को एलीट लेवल पे बहुत सी काइंड ऑफ कहते हैं ना कि बहुत सी चीजें उनके आसपास मंडराती हैं, चाहे वो फिजिकल इंटरवेंशन हो, चाहे वो मेंटल इंटरवेंशन हो, कहीं स्ट्रीट्स में, सोशल मीडिया में, इसमें उसमें। तो वहां से उनको हटके अपना फोकस नहीं गंवाना। तो ये बहुत अच्छी बात। एंड मैं समझता हूँ कि ये प्रेरणा है हम सबके लिए। नीरज भाई, आपके आपके लिए भी सेम क्वेश्चन कि जी यहाँ से कुछ प्रेशर, वो मुझे लगता तो नहीं है आपको, जितना मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी। नहीं, प्रेशर तो नहीं जी, पर मैं कोशिश यही करता हूँ कि यार अगर लोगों की इतनी उम्मीद है, हमारे ऊपर विश्वास है, तो हम अपना बेस्ट ट्राई दें और उनको कोशिश करें कि वो भी प्राउड फील कर सके जब हम जीते तो। और मैं मानता हूँ कि अगर हम जीत भी ना पाए तो लोगों को ये भी समझना चाहिए कि
जो मैं बता रहा था कि स्पोर्ट्स है, हार जीत होती रहती है। तो मैं एक ही बात बताऊंगा कि जीतते हैं तो सभी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं, बहुत बोलते हैं कि वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। लेकिन अगर खिलाड़ी जब हार जाए, अपनी कंट्री में प्रॉब्लम है, तो उसको इतने अच्छे से संभाला नहीं जाता। मुझे लगता है कि उस टाइम उसको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि वो उसने अपना बेस्ट देने की कोशिश की, लेकिन वो किसी कारण से हार जाते हैं। तो मैं मानता हूँ कि बहुत ही जरूरी है ये चीज चेंज होने की। उनको भी सपोर्ट करें और उनको प्रेरित करें, अगले अगले जो गेम्स या टूर्नामेंट्स या कॉम्पिटिशन्स होने हैं उनमें वो अच्छा कर सके। बहुत जरूरी बातें। और व्हेन द गोइंग इज नॉट गुड, उसी टाइम जो सपोर्ट मिलता है एथलीट को, वही उसका मनोबल बढ़ाता है, और वो उसको आगे एक प्रेरणा देता है, एक दृढ़ संकल्प देता है कि आगे और उसको अच्छा करना है, इस टाइम से आगे और बेहतर करना है, और कंट्री के लिए नाम रोशन करना है। तो नीरज भाई, 2019 में आपके एक करियर थ्रेटनिंग एल्बो इंजरी को ठीक करने के लिए सर्जरी करवाना पड़ा था। जी। उसके बाद क्या प्रोसेस रहा रिहैब का, से लेकर वापसी जेवलिन थ्रो तक? बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपका जो स्पोर्ट है, इट्स ऑल अबाउट एल्बो, आर्म, बॉडी। सो एल्बो का इंजरी होना तो काफी थ्रेटनिंग हुआ होगा। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि हमारा काफी जो थ्रो की पावर है वो एल्बो का, मतलब हमारी थ्रो में एल्बो का काफी यूज है। क्योंकि मैं राइट हैंडेड हूँ और मेरे राइट हैंड में ही प्रॉब्लम हो गई थी, और मुझे सर्जरी करवानी पड़ी। तो काफी वो टाइम थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैंने उस साल बहुत ही मेहनत की थी अपने उस साल की कॉम्पिटिशन्स के लिए। हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, एशियन चैंपियनशिप थी। तो मैंने पूरी मेहनत की थी अपनी तरफ से कि मैं कुछ अच्छा करूंगा इस साल। लेकिन बिल्कुल कंपटीशन शुरू होने से पहले वो बहुत ज्यादा इंजरी बढ़ गई थी, और मुझे सारे कॉम्पिटिशन कैंसिल करने पड़े और सर्जरी करवानी पड़ी। तो उस टाइम थोड़ा सा ऐसे फील हो रहा था कि यार ये क्या हो गया, ऐसे इतनी मेहनत की तो, और ये बिल्कुल ऐसे टाइम पे आके इंजरी होगी कि पूरी मेहनत पानी में चली गई। पर मैं वही मानता हूँ कि मैंने ये भी सोच रखा है कि यार खिलाड़ी की लाइफ में अगर हम डेली इतना फिजिकल वर्क करते हैं तो इंजरी होना एक ऐसी बात है कि हाँ, कभी भी इंजरी हो सकती है किसी को भी। बस हम ध्यान तो रखते हैं, लेकिन फिर भी कई चीजें ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो वो काफी उस टाइम पे प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन सर्जरी अच्छे से हो गई और मेरा रिहैब भी अच्छे से हो गया। तो उस चीज का काफी हेल्प रहा कि मैं। और फिर दूसरी बात है कि जब मैं ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा था, तो वैसे तो मैंने 2020 में ओलंपिक क्वालिफाई कर दिया था, और मैं तैयारी भी अपनी तरफ से ठीक थी 2020 के लिए, लेकिन फिर पोस्टपोन हो गया। तो उस चीज के बारे में मैंने सोचा कि अब मुझे एक साल और मिल गया, तो मैं अब और अच्छे से इसके लिए तैयारी करूंगा। तो वो कहीं ना कहीं एक हमारे लिए ठीक बात रही कि मुझे टाइम मिला और मैंने टाइम का मैं ठीक यूज कर पाया, तो उसका कहीं ना कहीं ये मेडल मुझे मिला है। जरूर। और इसके ऊपर नीरज भाई एंड लवलीना, कुछ कोविड का असर? बिकॉज कोविड के टाइम में इट वाज नॉट इजी फॉर एनी स्पोर्ट्स पर्सन, बिकॉज आपका मोरल डाउन था बहुत सी। आपको आई थिंक आप यू आर लकी कि आपकी ट्रेनिंग बाहर भी हुई है। तो जी, कहीं उसका भी कुछ इम्पैक्ट था कोविड का टुवर्ड्स द प्रिपरेशन? बिल्कुल। स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत रही, क्योंकि सब कुछ बंद था। बीच में तो 1-2 महीने के लिए तो पूरा सब कुछ ही बंद हो गया था, स्टेडियम्स वगैरह। हम अपने रूम में सिर्फ खाना खाते थे और रूम में रहते थे, और थोड़ा बहुत हम जो हमारे हॉस्टल के बाहर एक पार्क था वहां पे थोड़ी ट्रेनिंग कर लेते थे, लेकिन हम स्टेडियम में नहीं जा पा रहे थे, पूरा बंद था। तो उस टाइम थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन जब हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई तो हमारे वही फोकस थे, वही हमारे टारगेट था, और वही दिमाग में पूरा वही प्रिपरेशन को लेके हमारी ट्रेनिंग अच्छे से हमने शुरू कर दी थी। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई क्योंकि हम टाइम से बाहर नहीं जा पा रहे थे खेलने के लिए, तो वो कोविड की वजह से ये दिक्कतें आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि कहीं ओलंपिक कैंसिल ही ना हो जाए। तो ये थोड़ा माइंड में जो है थोड़ी प्रॉब्लम चलती थी। बाकी तो ट्रेनिंग हमने बहुत अच्छे से की, और सब बाकी तो ठीक रहा। और आपको बाकी लवलीना ही बताएगी कैसा रहा एक्सपीरियंस है। लवलीना ने भी काफी चीजें, ऑब्स्टेकल्स फेस किए हैं, हम सुनना चाहते हैं जी। उस बारे में। जरूर लवलीना। तो लवलीना, हाँ, टोक्यो प्रिपरेशन के बीच में काफी ऑब्स्टेकल्स आए थे आपके, जैसे कि आपकी माँ की किडनी का ऑपरेशन, और उसके बाद कोविड, और ये सब चीजें। तो इसमें क्या प्रभाव रहा होगा आपके ऊपर? बहुत ये पूरा साल मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहा, क्योंकि पहले क्वालिफाई किया मैं 20 में, और उसके बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया।
मार्च में क्वालिफाई हो गया था, उसके बाद ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। वहां से मतलब क्वालिफाई करके आने के बाद ही पूरा 6 महीना मुझे घर में रहना पड़ा, और घर में तो कुछ ट्रेनिंग का इक्विपमेंट वगैरह भी नहीं था, और यहाँ पे तो हमारा रोड भी ऐसा है कि उसमें जॉगिंग भी नहीं कर सकते, तो घर में रह के एकदम ट्रेनिंग नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं जो थोड़ा बहुत होता था उतना ही करती थी। और उसके बीच में मेरा मम्मी का तबीयत खराब होने लगे, और फिर मतलब मम्मी का तबीयत थोड़ा सा बीच में ठीक हुआ था, और मैं कैंप ज्वाइन किया था लॉकडाउन खत्म होने के टाइम ही। फिर बीच में मम्मी का तबीयत फिर से ज्यादा खराब हो गया, तो मैं मम्मी से मिलने आई तो मेरा फिर से कोविड पॉजिटिव हो गया। और उसी टाइम पे मेरा जो इटली का टूर था वो भी मतलब मेरा कैंसिल हो गया, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि मतलब प्रिपरेशन के लिए टाइम भी ज़्यादा नहीं था, और मम्मी का ऑपरेशन हुआ उसी टाइम पे। लेकिन खुद पे विश्वास था कि जितना भी मुश्किल आए कि मुझे हार नहीं मानना है, और मतलब जितना मुझे टाइम मिल रहा है उसके बीच ही मैं बस जितना हो सके ट्रेनिंग कर लूँ, क्योंकि कोचिंग वगैरह भी नहीं था घर में। और कैंप में जब कैंप में भी मैं गई तो फिर हमारा पूरा कैंप का पूरा टीम ही पॉजिटिव आ गए थे, तो भी वो मतलब ओलंपिक में जाने से 2-3 महीने पहले ही पूरा बॉक्सिंग कैंप ही हम लोगों का पॉजिटिव आ गया था। तो ट्रेनिंग इतना अच्छा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, बस लास्ट का 3 मंथ ही मैंने अच्छे से ट्रेनिंग किया, और उसी के बीच में भी मेरा एंकल स्प्रेन हो गया था, तो और एंकल स्प्रेन के साथ ही मैंने ओलंपिक खेला। तो खुद के लिए भी कि मतलब ये था कि मैं इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं खेल पाई, और लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन तो रहता ही है खुद पे कि और भी अच्छा कर सकती थी मैं, लेकिन थोड़ा बहुत मुश्किल था इस साल में। आगे नहीं, आगे होप करती डेफिनेटली हूँ कि ऐसा ना हो। नहीं, डेफिनेटली आपका स्ट्रगल रहा है। मैंने आपको बहुत क्लोजली फॉलो किया, आपको और नीरज भाई को, और मैं समझता हूँ कि जो हार्डशिप्स आपने फेस की होंगी वो कुछ आसान नहीं है, और ऊपर ऊपर में हैविंग एन एंकल इंजरी और उस पे एक एलीट ये इवेंट में पार्टिसिपेट करना और एक्सेल करना माइंड ब्लोइंग, मतलब सैल्यूट है आपको। लवली ना, हाल ही में काफी चर्चा आपकी ट्रेनिंग को लिए आपको हुई है। यूनिक फिटनेस के रेजीम के चर्चे काफी सुनने को मिले कि आप कुछ वेट ट्रेनिंग के लिए आप अपना एलपीजी सिलेंडर उठा के भी काफी खेतों में काम करती थी और ये सब करती थी, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए। आई थिंक दिलचस्प बातें हैं, हमारे श्वेता सब सुनने चाहेंगे उस पर। मेन बात तो ये था कि घर में इक्विपमेंट वगैरह कुछ भी नहीं था, तो ट्रेनिंग तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता था, और बाकी ट्रेनिंग करने के लिए भी कुछ स्पेस भी नहीं था कि मतलब कुछ रनिंग वगैरह भी नहीं कर पाती थी। बॉक्सिंग शेडो वगैरह तो मैं कर लेती थी, लेकिन वेट ट्रेनिंग के लिए कुछ था नहीं, तो सिलेंडर थी तो उसमें से मैं ट्रेनिंग करती थी। और मैं चाहती थी कि ऐसे ही मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिसको मतलब घर में ट्रेनिंग करने के लिए कुछ इक्विपमेंट वगैरह नहीं मिल रहे थे, तो मैं ये चाहती थी कि सभी घर का जो छोटा मोटा इक्विपमेंट है उसको भी लेके ट्रेनिंग कर सकते हैं। और जो खेत में जाने वाली बात है उसका तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं जब गांव में आती हूँ, क्योंकि यहीं पे मतलब बचपन से ही मैं खेत में जाती हूँ और इसी से ही जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे इसमें अच्छा लगता है, इसीलिए मैं खेत में जाती हूँ और उससे घर में भी हेल्प हो जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, एंड दिस इज हाइट ऑफ इनोवेशन ऑल्सो। कहते हैं ना कि हम लोग तो हमारी कंट्री में जुगाड़ का काफी बात करते हैं, नीरज भाई को अच्छी तरह पता होगा, लेकिन ये जुगाड़ से बहुत ऊपर है। ये कहते हैं ना, राइट फिट है, जो आपको चाहिए आप उसी उसी उसको आप इक्विपमेंट और अपने एडवांटेज के लिए बनाएं, तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। नीरज भाई, कुछ खाने पीने की चर्चा भी करते हैं आपसे। हमने ये सुनने में आया था कि प्रिपरेशंस के दौरान आपको अगर कुछ मीठा या चटपटा खाने बोलते थे तो आप मना कर देते थे और कहते थे कि मुझे एक बार में तसल्ली से खाना है। क्या अब 6 अगस्त के बाद आप तसल्ली से खाना खा रहे हैं? मुझे पता सो तो नहीं रहे हैं क्योंकि आप काफी ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हम जब अपनी तैयारी करते हैं तो उस टाइम पे हर चीज का, डाइट का, रेस्ट का, सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन
अभी सबसे बड़ा टारगेट इस साल का ओलंपिक था, और ओलंपिक्स में ओलंपिक खत्म हो गया, अच्छे तरीके से खत्म हुआ है। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ डाइट पे, अभी जो मुझे मिल रहा है मैं खा रहा हूँ, तो उसके लिए ज्यादा मैं अभी सोच नहीं रहा हूँ। लेकिन उस दिन में ऐसे होने लगता है, क्योंकि अभी एथलीट को यही लगता है कि यार हमारी फिटनेस खराब हो जाएगी और फिर हमको दोबारा से फिर ट्रेनिंग करनी है, तो थोड़े दिन में अपने आप माइंड उस हिसाब से काम करने लग जाता है कि यार बस ज्यादा मीठा या तली हुई चीज नहीं खानी है, क्योंकि उससे फिटनेस पे भी और काफी उस पे इफेक्ट पड़ता है। बहुत जरूरी है, और यही एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की खूबी है कि कब स्विच ऑफ होना और कब स्विच ऑन होना है, ये बहुत एक जी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। ये प्लानिंग बहुत जरूरी होती है, और यहीं हमारे कोचेस और सपोर्ट स्टाफ का भी अच्छा योगदान रहता है। तो लवलीना, जस्ट अ क्विक वन, लास्ट 2-3 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ, उसके बाद हम Q&A को ओपन करेंगे। कुछ हमारे श्रोताओं ने भी अपना क्वेश्चंस भेजे हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो लवलीना, आपकी हाइट आपका सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो पेरिस 2024 से पहले अपनी गेम में और क्या क्या सुधार या डेवलप करना चाहेंगी आप? हाइट तो हाँ, मेरा हाइट से मुझे फायदा होता है, लेकिन बॉक्सिंग ऐसा स्पोर्ट्स होता है इसमें मतलब हर टाइप का बॉक्सर्स का अलग अलग गेम होता है। जो हाइट छोटा है उनके लिए भी अच्छा ही होता है कि वो आगे बढ़ के मतलब खेल सकते हैं, लेकिन मेरा हाइट लंबा है इसलिए मुझे ज्यादा मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में खेलना पड़ता है। और पेरिस के लिए जो मेरा मतलब सेमीफाइनल बाउट में मैंने लॉस किया, तो मुझे खुद की बहुत सारी कमियां नजर आई जिसपे मुझे काम करना है। ज्यादातर तो मुझे स्ट्रेंथ के ऊपर ही काम करना है। अभी मेन फोकस तो स्ट्रेंथ पे ही रहेंगे, क्योंकि टेक्निक और टैक्टिक पे मुझे मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी स्ट्रेंथ के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा। बहुत जरूर, और ये जानना एथलीट के लिए बहुत जरूरी होता है कि कौन से एरियाज में वो और अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं ताकि उनको और रिजल्ट्स अच्छे मिलें। आशा करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रांग हो और अच्छी हो, और आप देश के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए अपना नाम रोशन करें। नीरज भाई, अभी जो सब फेलिसिटेशंस और प्रोग्राम के बाद जब वापस से ट्रेनिंग में उतरेंगे, क्या नया टारगेट, क्या गोल सेट किया है आपने? पेरिस 24 गोल्ड, मे बी 90 मीटर्स प्लस थ्रो, क्या मतलब? लेट्स हियर दैट फ्रॉम यू। नहीं, इतना इतना आगे का तो नहीं सोचा है जी कि पेरिस के लिए। अभी अभी तो बस अगले साल जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनकी तैयारी करेंगे। हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप है, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स हैं, और एक बार वो अच्छे से हो जाए तो फिर अगले साल के लिए ऐसे सोचेंगे, तो बिल्कुल ऐसे काम करेंगे। वेरी गुड, एंड दैट इज व्हाट दे से, स्टेप बाय स्टेप व्हाट लीड्स टू द टारगेट। वही बहुत छोटे छोटे टारगेट्स बना के ही बड़ा टारगेट अचीव जी किया जाता है। तो बहुत ही अच्छी सोच नीरज भाई एंड लवलीना। मेरे पास तो क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन हमारे पास टाइम की भी पाबंदी है। नीरज भाई को भी आज, नीरज भाई, आपके आपके पास एक काफी बड़ा अवसर है, शायद इवनिंग में आपके नाम से ये पुणे में स्टेडियम जी जी जी। का फेलिसिटेशन सब सेरेमनी होने वाला है। तो बहुत बड़ा अवसर है, और ये हमारा गौरव की बात है हमारे सबके लिए। या जितनी ऊंचाइयों में आप जाएं, हमारे को उतना ही अच्छा प्राउड फील होगा। तो थैंक यू। मैं इन द मीन टाइम, may I now request Merlin to kindly come in and see if there is any question answers? या थैंक्स राजीव। मेरा पहला सवाल लवलीना से है। लवलीना, आप अपनी किन चुनौतियों का सामना आपने किया और आपका दिनचर्या कैसा रहता है? आपकी ट्रेनिंग की शेड्यूल कैसे रहती है? पहला क्या बोला आपने कि कैसी मुश्किलों का सामना? हाँ, आपको सबसे किन चुनौती, मुश्किलें कैसी आई आपकी जिंदगी में? क्या क्या आपको बर्दाश्त करना पड़ा इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, और किस तरह आपने इन चुनौतियों को बात देते हुए आगे बढ़ी आप? पहला तो मेरा मतलब पहला मेरे लिए सबसे मुश्किल था घर से दूर रहना, क्योंकि घर से मैंने कभी भी दूर नहीं रही थी, हमेशा मम्मी के साथ ही सोती थी, और जो भी डिसीजन लेते थे घर वाले ही लेते थे। लेकिन जब मैं बॉक्सिंग स्टार्ट किया और हॉस्टल में रहने लगी, तो हर डिसीजन खुद को लेना पड़ता था, और बहुत सारी जैसे प्रॉब्लम होते थे, लेकिन घर में नहीं बोल सकते थे क्योंकि घर वाले ज्यादा टेंशन ले लेंगे।
तो जैसा भी मुश्किल आते थे खुद ही हैंडल करती थी, तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल बात थे। और बाकी दूसरा तो था कि जैसे कि मतलब इंजुरीज मेरा हर मतलब मेजर कंपटीशन से पहले मेरा इंजुरीज होते हैं, तो उस टाइम पे खुद को मतलब ये समझाना कि ये सब होते रहेंगे, लेकिन खुद को मतलब डाउन नहीं होना है, मुझे स्ट्रांग होके खड़ा रहना है। तो ये भी थोड़ा सा मुश्किल होते थे मेरे लिए, क्योंकि हर कंपटीशन से पहले मेरा इंजुरी होते थे, तो उस टाइम पे इंजुरी के साथ ही मुझे खेलना पड़ता था। तो ये एक दूसरा मुश्किल था। और तीसरा था कि मतलब बहुत सारी जैसे कि गेम के बारे में सोच के बहुत सारी चीज नहीं करती थी मैंने बचपन से आज तक वेकेशन नहीं मनाया था, क्योंकि ये सोचती थी कि मतलब ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद ही वेकेशन मनाऊंगी, और ऐसा सोचती थी कि गेम में इफेक्ट पड़ेगा। और कभी-कभी ऐसा होता था कि अच्छा चीज खाने का भी मन होता है, लेकिन नहीं खाती थी कि गेम में इफेक्ट पड़ेगा सोच के ही। और ऐसे ही इतना ही था बस। और बाकी तो छोटा-मोटा तो होता ही रहता है, लेकिन खुद खुद पे विश्वास था कि मुझे करना है, और कुछ बड़ा करने के लिए तो छोटा-मोटा ये सब होते ही रहेंगे। तो इतना मतलब खुद को ऐसे ही समझाती थी मैं। बिल्कुल, कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। नीरज, जी। आप बताएं, जब नेशनल एंथम बज रहा था तो आपको कैसा महसूस हुआ? वो तो बिल्कुल अलग फीलिंग थी। उसके बारे में मैं शायद बता भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि उसमें से थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने भी फील किया होगा जब वहां पे नेशनल एंथम बज रहा था और आप सभी भी देख रहे थे, तो कितना अच्छा लगता है। और बिल्कुल, और मैं वहां पे स्टेडियम के अंदर खड़ा था, मेरे गले में मेडल था, तो वो बिल्कुल वो एक अलग ही फीलिंग है। वो ऐसा लग रहा था कि यार जो टारगेट इतना ये लेके चले थे, इतनी मेहनत की थी, तो वो आज पूरा हुआ है। तो वो उस टाइम पे हम शायद वो पूरा फील भी नहीं कर पाते हैं, वो बाद में धीरे धीरे वो चीज प्रोसेस होके फिर वो बाद में फील होती है। तो वो उस टाइम तो बहुत ही एक एक्साइटमेंट होती है। सही कहा आपने। हमें भी बड़ा गौरवान्वित किया आपने उस वक्त, बहुत अच्छा महसूस हुआ। आप दोनों में से कोई भी ये बताएं मुझे, अगर कोई 17 या 18 साल की उम्र में कोई स्पोर्ट्स शुरू करता है, तो इसमें क्या कोई डिसएडवांटेज है? और अगर हमारे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? लोलीना बताएगी पहले या मैं बताऊं? आप बताइए। ओके, अगर मैं मेरे स्पोर्ट्स की बात करूं, जेवलिन की और एथलेटिक्स की, एथलेटिक्स में तो कर सकते हैं, लेकिन जेवलिन की अगर मैं बताऊं तो मुझे लगता है कि 17-18 साल से पहले अगर हम थोड़ा स्टार्ट कर दें तो काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि सबसे जरूरी होता है कि हम पहले जूनियर कॉम्पिटिशन्स खेल लें, उसके बाद सीनियर में आए, ताकि स्टेप बाय स्टेप हमको वो कंपटीशन मिल सके। क्योंकि हम अगर एक एक ऐसी उम्र में स्टार्ट करेंगे कि हम बहुत जल्दी सीनियर लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो वो काफी एक टारगेट होता है एथलीट के सामने मेडल जीतना, तो वो काफी मुश्किल हो जाएगा कि अगर हम सीधा सीनियर लेवल में जाएं। तो मैं ये मानता हूँ कि जल्दी से शुरू कर देना चाहिए, 13-14 साल की उम्र में या उससे थोड़ा पहले थोड़ी फिटनेस करने लग जाओ, ताकि हमारे पास टाइम रहे कि हम जूनियर भी खेल सके और हमारा करियर लंबा हो सके और हमें किसी चीज का प्रेशर ना हो। तो मैं यही मानता हूँ और यही मेरी अपने इवेंट को लेके सोच है। लवीना, आप क्या इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी? हाँ, ये तो सही है कि थोड़ा सा कम एज से मतलब स्टार्ट करते हैं, तो फिर मतलब कंपटीशन के हिसाब से जूनियर से यूथ से ये अच्छा होता है। लेकिन अगर 17-18 इयर्स में भी अगर स्टार्ट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रॉपर ट्रेनिंग मिले तो अच्छा से अगर फोकस करे तो अच्छा कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो उनका एज हो गया तो नहीं कर पाएंगे। बॉक्सिंग ऐसा स्पोर्ट्स होता है, जो मेरा कोच है उन्होंने 30 एज में बॉक्सिंग स्टार्ट किया था और उन्होंने इंटरनेशनल भी खेला है। तो हाँ, जरूर कर सकते हैं, हमारे बॉक्सिंग में तो कर सकते हैं। मैं आनंद से कहूंगी कि वे अपना प्रश्न रखें अभी। आनंद, you can ask the question now.
Hi, hi, good afternoon everyone. नीरज, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि एज अ एथलीट में मैं ओलंपियन हूँ, सिडनी ओलंपिक्स में गया था और आज तुम्हारे वजह से हम बोल सकते हैं स्पोर्ट्स में कि जी हम जी एथलीट्स भी कुछ कर सकते हैं। मतलब हम जब भी अभी हमको 20 साल हो गए, हमको बाहर जाके कुछ किसने पूछा कि एथलेटिक्स का क्या फ्यूचर है क्या नहीं है, तो आज हम दिल से बोल सकते हैं कि देखो हमारे पास आज गोल्ड है। तो मेरा तेरे लिए एक क्वेश्चन ऐसा है कि नीरज, जब भी तू वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड जीत के आया था, उसके जी बाद तेरे मन में किधर ये था कि मैं ओलंपिक्स में गोल्ड जीतूंगा? बिकॉज हमारे टाइम में हमारा ओलंपिक्स जाना ही अपना सपना था, हम तो मेडल के बारे में कभी सोच भी नहीं रहे थे। लेकिन तुम्हारे टाइम में सिचुएशन चेंज हुआ था, यू आर ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियन इन यूथ, तो जूनियर वर्ल्ड चैंपियन था। तो तेरे पहले ही तेरे माइंड में था कि हम कुछ करेंगे देश के लिए, ओलंपिक्स में मेडल जीत के आएंगे 4 साल या 6 साल पहले? बिल्कुल उस टाइम पे आ गया था, क्योंकि वर्ल्ड जूनियर में, क्योंकि मैं जूनियर था, लेकिन जो थ्रो थी वो काफी एक जो वर्ल्ड लेवल की उस टाइम थ्रो थी, क्योंकि सीनियर में भी उतने में मेडल आ रहे थे, और ओलंपिक में, रियो ओलंपिक में 85 कुछ में मेडल आया था। तो इसलिए मुझे लग रहा था कि हाँ, हम ओलंपिक में मेडल जीत सकते हैं। और 10-12 दिन के गैप से मैं रियो ओलंपिक नहीं जा पाया था, क्योंकि उसकी डेट बंद हो गई थी, और मैंने उसके बाद 10-12 दिन बाद मैंने वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड किया था, और क्वालिफाई से 3 मीटर आगे थ्रो भी की थी। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये था कि अभी टोक्यो के लिए पूरी तैयारी करनी है, और बिल्कुल हम मेडल जीत सकते हैं, ये मेरे दिमाग में पहले से ही था। और उसके लिए जो प्रिपरेशन थी वो पूरा अच्छे से फोकस करके हमने की फिर। थैंक यू सर। थैंक यू। नीरज, आपके लिए दूसरा सवाल है, ये compete करने से पहले आपने आपके जी, कोच से आखिरी बात क्या की थी, और ये नियॉन कलर का जैवलिन का क्या राज है? कोच से तो यही हाँ ये हाँ अपने आप नीरज, सॉरी, ये क्या? म्यू, म्यूट हो गया था। आपको आवाज आई मेरी? या आ बिल्कुल रही है, बिल्कुल, गो अहेड। अब आ रही है। ओके ओके। तो हाँ जी, तो काफी वो मुझे जैवलिन पसंद है, और इसलिए मैं उसके साथ थ्रो करता हूँ अभी। लवलीना, आपको कैसा, आपको जब आखिरी बाउट में आप गई ब्रॉन्ज मेडल फाइट, थर्ड फोर्थ पोजीशन के लिए, आपके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था? हाँ, यही बात मैंने बोलना ही था कि ये मैंने इतना ही सोचा था कि मतलब दर्द तो बिल्कुल ही नहीं लग रहे थे मुझे, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज ही मेरा दिन है तो मुझे खेलना है, और बस आज जीतना है, बस देश के लिए आज तो जीतना ही है, बस इतना सोचा था। और मतलब असम, पूरा देश का लोग ही प्रे कर रहे थे मेरे लिए, और मेन तो हमारे आसाम से सभी मतलब दिया जला रहे थे मेरे लिए, पूरा आसाम दिया जला रहे थे। तो मैंने मतलब भगवान से भी ये भी नहीं मांगा कि मुझे आज जिता दो, बस मुझे पता था कि सब मेरे लिए प्रे कर रहे हैं, और मुझे खुद के लिए प्रे नहीं करना है, आज मुझे बस खेलना है बिना डरे, बस इतना ही सोचा था मैंने। नीना, आप हमारे जो पीढ़ी है यहाँ पे स्पोर्ट्स वाली, जो बच्चे हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपके तरफ से? सारे बच्चे आपको देख रहे हैं, आप दोनों मोटिवेट करते हैं हमारे प्रेजेंट जनरेशन को, तो आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगी? मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि अगर कुछ भी करे, बस खुद के ऊपर विश्वास रखे, और मेहनत करते जाए, और हमेशा सीखने की कोशिश करे बस। नीरज, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो स्पोर्ट्स के एथलीट्स हैं, वेरियस डिसिप्लिन के बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस जी, सेशन में, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस उनको ये बोलूंगा कि आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो
सबसे बड़ी बात है पेशेंस रखिए, सब्र होना सबसे जरूरी है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही अगर सोचेंगे कि हम 1-2 महीने में या 3 महीने में मेडल जीत ले, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में हम इंजरी करवा सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि पेशेंस रखें, अपने ऊपर बिलीव रखें और मेहनत करते रहें अपने टारगेट के लिए। तो बिल्कुल उसमें टाइम लगता है, क्योंकि एकदम हमको मेडल नहीं मिलते हैं, अचीवमेंट एकदम नहीं आती है, तो उसमें टाइम लगता है। तो बस अपने ऊपर विश्वास करके अपनी अच्छे से ट्रेनिंग करते रहे और बिल्कुल टाइम पे सब कुछ हो जाता है सही से। Thank you, Neeraj. Thank you, Lavina.